Hello everyone and a very good afternoon to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, this is a one-shot revision series that we are conducting on Sunday. So ideally it was supposed to happen at 11 a.m. but because of some reasons we have shifted it to 1 p.m. Okay, इस series में one-shot revision series, this is the part 2. So part 1 is also available. We will ensure that there should be a playlist for that as well. So am I audible? आवाज आ रही है? So in this series, what I do is I give you a lot of questions. तो कुछ questions दूंगा और questions के अंदर भी बहुत सारे questions पूछूंगा, ठीक है? And you are supposed to answer more. तो इस टाइप की सीरीज में आपको ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा. You have to be more active because I will be asking more questions and I will be giving less answers. ठीक है? आपसे सारा सवाल कोई पूछूंगा. Okay? Because this is a revision series. Okay, let's start. This is the question asked in last year. तो पहले आप ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जो लास्ट ईयर पूछा गया है. इससे मैं 2-3 और सवाल बनाऊंगा, ठीक है? सो दिस इज द क्वेश्चन. द राष्ट्रपति भवन was formerly known as Viceroy's place during colonial times. So this, when we are talking about Rashtrapati Bhavan, we are talking about New Delhi. But I hope you are aware, I have taught you in history that in 1911, it was decided that the capital should be shifted from Kolkata to Delhi. So where were actually viceroys used to sit in before 1911, that is in Kolkata. So what is the answer? The answer to this question is yes. So the answer, yes, Belvedere House, very good. So A is the right answer. ये जो पीछे की फोटो है वो Belvedere House की ही फोटो है. And this photo is taken by me. ठीक है? Okay. So आप देख सकते हो. When you get a chance to visit Kolkata National Library and all in Kolkata, तो इसमें आप जब जाओगे ना इसके अंदर, okay, it's near Alipur region. Alipur Zoo is there. So when you go inside it, you will get this. ठीक है? ये वाली building अभी भी available है. It's there. Okay. Now, second thing is, I hope you are aware that till 1911, so Kolkata was the capital of British. Now, so in 1911, the British decided to move it to Delhi. Okay. Now, the question is, I have told you that in 1911, they have decided to move the capital. Yes. Now, so 2 important events happened in the year 1911. So what are those 2? The first I have told you is the shifting of capital. What is another important shifting of capital? What is another important event that has happened in 1911? It is related something with partition of Bengal. I have taught this in the paid classes. तो जो पेड क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ा होगा उनको पता होगा. What special thing happened in the year 1911? One is shifting of capital. What is another thing? It is something related with partition of Bengal. नहीं, सिविल डिसोबीडियंस तो 1930s में हुआ था. देखो मैंने आपको बताया था 1905 में द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल बाय ब्रिटिश. उसको रिवर्स किया गया था. सो एक्चुअली मर्जिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, है ना, या रिवर्सिंग 1905 डिसीजन, ये मैंने बताया रिवर्सिंग ऑफ 1905 डिसीजन ऑफ एक्चुअली I mean the merging of East or West Bengal आप कह सकते हो. And 1905 partition of Bengal led to the protest of Swadeshi movement and all. ये भी मैंने बताया था, Swadeshi and boycott. Yes, very good. Partition of Bengal revoked. Good. एक और चीज आप बताओ. We have discussed it that in Kolkata, Viceroy used to sit in Belvedere House. In Delhi, Viceroy used to sit in Rashtrapati Bhavan. मतलब today it is called as Rashtrapati Bhavan. ठीक है? After independence, it is called as Rashtrapati Bhavan. Now, एक चीज और आपको पता होगा. I hope you are aware that British used to move to Shimla. Here is हिमाचल प्रदेश. कहीं भी यहाँ ये भी कहीं भी मिलेगा आपको शिमला, which was actually called as summer capital of British. ठीक है? मैंने बताया आपको. ओके, समर कैपिटल यानी जब गर्मी होती थी, बहुत सारी गर्मी पड़ती थी तो लोग शिमला चले जाते थे. सो शिमला में वाइसरॉयज प्लेस जो है उसको क्या कहते हैं आज? सो टुडे there was actually a viceroy's place at that time, what we call it as Viceroy's Lodge in Shimla. So now it is called as, that building is called as what? उस building का क्या नाम है बताइए तो. Yes, someone has written it. Because it was in the news as Shimla was having landslides and all, इसीलिए news में था. And the right answer is IIAS, अब इसको कहते हैं Indian Institute of Advanced Studies. यही building है, ठीक है? So when you get a chance to visit Shimla, कभी भी आप जाओ तो यहाँ जरूर जाना. You should go and visit this building. So this is called as Viceroy's Lodge.
Now it is called as IIAS, Indian Institute of Advanced Studies. Or I hope you are aware, because recently we have seen Shimla, there have been incidents of landslides in Himachal. So यहाँ पे बात आ रही थी कि sinking वगैरह हो सकता है and all these things. Okay, so ये सब पता होना चाहिए. Now let's start with the questions. देखो इस तरह का मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्री ये बहुत बार पूछा उन्होंने. इनफैक्ट 2021, 22 में दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड विद मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर्स. इसलिए मैं आपको बार बार याद कराते रहता हूं. हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? These are your options, and I think it's very easy. The right answer is option B. Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗪 𝗏 is the education minister of India. ठीक है. अच्छा, can anyone tell me? So education ministry was earlier called as what? Earlier called as which ministry? इससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री को, और यू कैन से बिफोर 2020. एक्चुअली इन 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च. ये आपको पता होगा शायद. ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, है ना. सो बिफोर, आई मीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्ड अबाउट चेंजिंग द नेम ऑफ मिनिस्ट्री. So what was, yes, very good, Garima Chaudhary side, fantastic. So earlier it was called as Human Resource Development Ministry, HRD Ministry. ठीक है. Okay. Now after the National Education Policy 2020, it said, in fact इस policy में mentioned है, in the National Education Policy 2020 it says that we will be changing the name of HRD Ministry to Education Ministry. ठीक है. So you should be knowing about it. So here the right answer is B is the right answer to this question. ये सब पता होना चाहिए आपको, बिकॉज मिनिस्ट्रीज वगैरह से क्वेश्चन आया. आई विल शो यू अभी कुछ और 5-7 मिनट बाद आएगा और भी. आर्टिकल X ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स मेंबर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस एंड इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस. आर्टिकल 119 and 105, 111, 117. ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप अ 7-judge bench regarding this article. Hearing is I think happening. किसी को पता है ये कि 7-judge bench बनाई गई है? अच्छा, जो 7-judge bench बनाई गई वो कौन से ऑर्डर के अपील में आए? सो द राइट आंसर इज बी. ओके, लेट मी टेल यू. सो 105 एक्चुअली टॉक्स अबाउट इट, है ना. इम्यूनिटी वगैरह जो है, देखो, पावर, प्रिविलेजेस, हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स एंड कमिटी देयर ऑफ, है ना. तो आप इसको पढ़ोगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, द प्रोसीजर परमिट शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल. ठीक है, नो एनी कोर्ट प्रोसीडिंग एंड ऑल. इसका इन जनरल मतलब ये होता है that if a MP says something in the parliament, he or she will not be liable in a court. यानी कुछ भी उन्होंने बोला तो उसके लिए जवाबदेही अदालत में नहीं होगी. ओके, बिकॉज दैट्स अ इम्यूनिटी he or she enjoys. बट इससे रिलेटेड कुछ मैटर था which was decided previously in 1998. I think there was a judgment. 1998 में एक जजमेंट था, उसके फिर अपील गया है लार्जर बेंच में. देखो, ये हार्डली 4 अक्टूबर की आर्टिकल है. सुप्रीम कोर्ट 7-judge bench examines scope of immunity for MP MLAs taking bribes for speech vote in legislature. ठीक है, तो आपको एक पता होना चाहिए 105 is for MP, ठीक है, and 194 is for MLAs. सेम चीज है, बट MLAs के लिए 194 है, MPs के लिए 105 है. ओके, ठीक है. नाउ देन देखो, अभी ये था नो इम्यूनिटी फॉर कैश फॉर वोट, सेंटर क्लैरिफाइज दैट स्टैंड इन सुप्रीम कोर्ट. ये भी अभी न्यूज था. ठीक है. सो बेसिकली एक प्रीवियस जजमेंट का अपील है. कोई बता सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जजमेंट? एक प्रीवियस जजमेंट का ये अपील चल रहा है यहाँ पे. कोई बता सकता है उस जजमेंट का नाम? आई विल बी वेरी हैप्पी इफ समवन सेज इट. कोई बता? हाँ, 89 का डिफरेंस होता है, मैंने बताया था. गुड, गौरी सेठी. हाँ, एनीवन? ओके, तो हम ही बता देते हैं क्योंकि अभी रिसेंट. देखो, एक जजमेंट है PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998, है ना. PV नरसिम्हा राव केस किया था 1998 में. उसके लिए बड़ी बड़ी बेंच बनाई गई, 7-judge bench बनाई गई है. देखो लिखा 105 and 194, 105 clause 2 and 194 clause 2. ओके, द जजमेंट हैड सेड इम्यूनिटी कुड बी ओनली एक्सटेंडेड इफ. इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, हम इसको पूरा डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं बिकॉज परहैप्स शायद लीगल सेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एज कम्पेयर टू जीके. बट मेरी राय है कि इसको आप एक बार फॉलो कीजिएगा, छोड़िएगा मत. ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन द एम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड बाय द ईयर 2023, 24, 25, 26. मतलब पूछा जा रहा है कि ये जो टारगेट है वो कब अचीव करना है, कौन से साल में. सो द टारगेट इज टू प्रोवाइड एवरी रूरल हाउसहोल्ड, हर गांव के घर में
है ना, water tap water connection should be there, that is the target, and the year is 2024, so B is the right answer. Yes, 2024 कई सारे लोगों ने आंसर लिखा है. Yes, प्रांजलि, गरिमा, हाँ नंदिता, जिन्होंने भी आंसर किया यू ऑल आर राइट, है ना. जल जीवन मिशन इज एक्चुअली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, देखें कितने लोग आंसर कर पाते हैं. The Ministry of Jal Shakti was formed after merging Ministry of Drinking Water and Sanitation and Ministry of What. देखो मैंने आपको कई बार कहा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, उन्होंने मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री से सवाल पूछा है. So they can again ask. This is their perhaps a favorite topic, one of the favorite. बताइए, थोड़ा सा लॉजिक से भी आंसर कर सकते हो, बट अगर पता होगा तो ज्यादा अच्छा आंसर कर पाओगे. यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुवेनेशन. ठीक है, इसको मर्ज किया गया था. इनफैक्ट अगर आप गौर से देखोगे, ये जो मिनिस्ट्री थी ना, नाउ दिस हैज बीन मेड अ डिपार्टमेंट. देखो यहाँ लिखो, जल जीवन मिशन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन. अर्लियर दिस डिपार्टमेंट वाज अ सेपरेट मिनिस्ट्री, नाउ इट हैज बीन मेड अ डिपार्टमेंट अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री. ठीक है, तो मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट होता है. ठीक है, मल्टीपल 2 3 4 मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होता है. ठीक है, ओके. यस, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द मिनिस्टर हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति. मिनिस्टर का नाम बताइए, ये भी पूछते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो अब देखो जल शक्ति मिनिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इट वाज फॉर्म्ड इन मई 2019, है ना, बाय मर्जिंग 2 मिनिस्ट्रीज, है ना. सो मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड अगर कोई न्यूज में, तो उसका विकिपीडिया का फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैसेज, सेकंड पैसेज से पढ़ा करो. ठीक है, थोड़ा सा आप ये वेबकॉस के बारे में अगर मौका मिले तो पढ़ लेना. सो दीस थिंग्स दे आर आस्किंग इन डिटेल, है ना. मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इज एक्चुअली द जल शक्ति मिनिस्टर. यस, गौरी, गरिमान, शुमन, you all are right. Now this is the next question. Read the question carefully and then answer it. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और फिर आंसर कीजिए. These are the 4 options in front of you. Among the following is the Foreign Secretary of India, Mr. S. Jaishankar, Mr. Vinay Mohan Kwatra, Mr. Vijay Gokhale, Mr. Arindam Bagchi. What is the right answer to this question? Yes guys, everyone please press the like button. सबको like button press करते जाओ. Yes. Please read the question carefully and then answer it. ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा. हाँ, गुड, वेरी गुड. हाँ, देखो एक्चुअली क्या, ये फॉरेन सेक्रेटरी मैं पूछ रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर नहीं. सो व्हेन इट कम्स टू फॉरेन मिनिस्टर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. व्हेन इट कम्स टू अ फॉरेन सेक्रेटरी, सिंस आई वाज आस्किंग, सो फॉरेन सेक्रेटरी इज एक्चुअली ऑप्शन बी इज करेक्ट. मिस्टर विनय मोहन क्वाट्रा इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अच्छा, ये कौन है? हु इज दिस पर्सन? ही इज ऑल्सो वेरी फेमस. हु इज ऑप्शन डी? कैन एनीवन टेल मी? अच्छा, देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो अभी रिसेंटली G20 समिट ऑर्गेनाइज, सो थिंग्स वेयर इन द न्यूज, एंड फॉरेन मिनिस्टर वाज इन द न्यूज एंड ऑल. तो ऑफ कोर्स फॉरेन सेक्रेटरी भी आपको पता होना चाहिए. फॉरेन सेक्रेटरी जो होते हैं ना, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट आप समझ सकते हो फॉरेन मिनिस्ट्री के. ठीक है, और मिनिस्टर जो होते हैं वो जनरली पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है, आपको पता होगा ये सब चीजें, है ना. यस, सो अरिंदम, मिस्टर अरिंदम बागची इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन. ठीक है, so here the right answer is B is the right answer to this question. Okay, now कुछ और क्वेश्चन. G20 समिट हुआ था, G20 समिट जिस बिल्डिंग हुआ था उस बिल्डिंग का नाम बताइए. प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द बिल्डिंग. ओके, सेकंड थिंग इज हु वाज द शेरपा. प्लीज आंसर इट इन द लाइव चैट. ठीक है, थर्ड थिंग, बिल्डिंग के जस्ट सामने यानी ग्राउंड में ही, मतलब उसके कैंपस में एक स्टैचू लगा हुआ था, वो स्टैचू क्या चीज का है? प्लीज टेल मी दिस थिंग्स. और अगर आप मोटो बता दो तो और अच्छा है, आई विल बी वेरी हैप्पी. हाँ, वेरी गुड. बिल्डिंग का नाम था भारत मंडपम. शेरपा थे मिस्टर अमिताभ कांत, है ना, अमिताभ कांत. गुड. हाँ, और मोटो क्या था? और G20 में के जो बिल्डिंग है भारत मंडपम, उसके आगे एक स्टैचू लगा था, क्या चीज का? हाँ, नटराज का. गुड, नटराज. यस, वेरी गुड. एंड मोटो इज वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. वेरी गुड. हाँ, चलो, वेरी गुड, जो आपको पता है अच्छी बात है. अच्छा, थोड़ा सा आप नटराज के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा. ठीक है, गो एंड रीड इट. विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद? कोई बता सकता है कौन से डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? साउथ इंडिया की कोई डायनेस्टी से एसोसिएटेड है नटराज स्टैचू. ठीक है, ओके. यस, ओके. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBC? आई थिंक इट्स अ इजी क्वेश्चन, बट स्टिल आई एम आस्किंग इट. हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा. आई एम वेरी हैप्पी दैट यस यू ऑल आर रिस्पॉन्डिंग इट. ये इसलिए न्यूज में था एक्चुअली, ये सब मई वगैरह में न्यूज में था. आईटी का इनकम टैक्स सर्वे वगैरह हुआ था एंड ऑल.
So this thing was very much in the news. So the right answer is हाँ मैंने पूछा था नटराज कौन से डायनेस्टी से एसोसिएटेड. वेरी गुड, समवन हैज रिटन चोला डायनेस्टी. गुड. हाँ. Yes, here the right answer is British Broadcasting Corporation. B is the right answer to this question. Okay, the next one is Hindenburg's research report recently led to the sharp decline. The stock prices of Adani Group is based in London, New York, Beijing, Paris. बताइए तो. Yes, गरिमा चौधरी, you are right. Lord Shiva को emphasize करते हैं. हाँ. Hindenburg research report led to the sharp decline in stock prices of Adani Group is based in. Yes, B is the right answer. New York is the right answer to this question. ठीक है. ठीक है. नाथन एंडरसन इज द फाउंडर एंड ऑल. इसके बारे में थोड़ा सा चूंकि मैं बात कर रहा तो बता ही देता हूँ. नटराज जो है, यस, इट एम्फसाइजेस लॉर्ड शिवा. वो एक तांडव डांस, आई थिंक दिस कॉल्ड एज तांडव डांस. इसको पढ़ लेना थोड़ा सा. ठीक है. सो गो एंड रीड तांडव डांस एंड समथिंग अबाउट नटराज एंड ऑल. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको. ओके, यस. So here the B is the right answer. The next one, Justice Sapre panel was also set up by the Supreme Court and all. तो ये Justice Sapre panel पूछ सकते हैं. Core inflation does not take into account the inflation in. ये मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया है काफी. Beverages, food and fuel, petroleum and natural gas imported products. Core inflation में क्या चीज नहीं ऐड होता है? Yes. हेडलाइन इन्फ्लेशन में अगर आप फूड एंड फ्यूल माइनस कर दोगे, इट विल बिकम कोर इन्फ्लेशन. यस, मैंने बताया है हेडलाइन, इफ यू रिमूव फूड एंड फ्यूल फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकम्स कोर. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, यस. बहुत से लोगों ने आंसर किया. गुड, वेरी गुड. यस. व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ आरबीआई? बताइए. यस, इससे पहले का बी आंसर था. मेनी पीपल हैव आंसर्ड इट. वेरी गुड. अच्छा, आरबीआई की एक एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. So how many members are there? आपको बताना है. Who is the ex officio chairman, ex officio chairperson of monetary policy committee? ये बताना है. मतलब कौन होते हैं और अभी वो कौन आदमी, मतलब who is the person who is actually taking that post? वो पर्सन का नाम भी बताना है. Yes, inflation target of RBI is 2 to 6. Yes, very good. Pranjali has answered it. So most people have earned, मैंने आपको बताया 4 ± 2%. इसका मतलब है 2 to 6%, not 4 to 6%. हमको पता है A और B में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट A is the right answer. 2 to 6% is there. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? Yes, 6 members. Yes, गरिमा चौधरी is right and Jatin is right. हाँ. So there are 6 members in monetary policy committee. Who is the ex officio chairperson of monetary policy committee? Yes, गरिमा चौधरी. Very good. Ex officio chairperson is RBI governor. ठीक है. And who is the RBI governor? I think इतना तो पता होना चाहिए. Mr. शक्ति कांता दास. शक्ति कांता दास. ठीक है. So is the right answer. Yes, very good. हाँ, नंदना, संजय, हर्षित, गौरी, you all are right. हाँ. Okay, is the right answer. The next one is people from Ladakh are protesting to were protesting. Where लिख देते हैं. उस टाइम पर न्यूज में था. चलो खैर. 5th schedule, 6th schedule status, 9th schedule, none of the above. So हाँ, इसका आंसर ए था, है ना. चलो, ये काफी न्यूज में था. There is a very famous person who was protesting there. What is the name of that person? जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लद्दाख में. He has, I think, some association with 3 Idiots film also, a very famous film. Yes, they were protesting for 6th schedule. B is the right answer. What is the 6th schedule and can Ladakh be included under it? ये जनवरी वगैरह में न्यूज में था, and at that time it was in the news. Mr. Sonam Wangchuk, he is a very famous person. Yes, Gauri Sethi, very good. Sonam Wangchuk. So he was doing climate fast, fragile ecology, and 6th schedule. All is not well in Ladakh. So I think he has some association with that film also, 3 Idiots and all. तो खैर यहाँ पर this one is the Union Territory of Ladakh. ठीक है. So after that, actually the Lieutenant Governor was replaced. So who was appointed as the new Lieutenant Governor of Ladakh? Mr. B.D. Mishra, Mr. Fagu Chauhan, Justice S. Abdul Nazir, Mr. Gulab Chandra Kataria. What is the right answer to this question? So the right answer is
द राइट आंसर इज मिस्टर बी डी मिश्रा इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली क्या है, मंडे को हम लोग 6 PM पे रिवीजन सीरीज चलाते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे का छूट गया है, उसको हम लोग यहाँ से कवर करा देना अगर आपको मिस कर गया तो, ठीक है। एंड जस्टिस अब्दुल नजीर इज आंध्र प्रदेश गवर्नर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ही रिसेंटली रिटायर्ड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो हियर द राइट आंसर इज मिस्टर बी डी मिश्रा इज अ ब्रिगेडियर, फॉर्मर ब्रिगेडियर, सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। The next is recently lithium have been found in Manipur, Ladakh Union Territory, Jammu and Kashmir Union Territory, Kerala। और सिटी का नाम बता दो तो और अच्छी बात है, लिथियम। Now why is lithium so important? Because it is used in जैसे आपने सुना होगा lithium ion बैटरी वगैरह होती है, so it is famously used in battery and nowadays electric vehicle का जमाना आ गया आजकल, है ना, so of course it becomes even more important, है ना। So we have found it recently in the Jammu and Kashmir में एक जगह रियासी, yes, रियासी डिस्ट्रिक्ट, हाँ, yes, he is the right answer, yes, गौरी सेठी, रियासी है, इट्स नॉट रेस है, हाँ, ये वाला स्पेलिंग है, यस प्रांजलि यू आर राइट, हाँ, सो सी इज द राइट आंसर। इंडिया टू ऑक्शन लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर बाय दिसंबर एंड ऑल, ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया। देखो ये लिथियम। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, देयर इज लिथियम ट्रायंगल इन द वर्ल्ड, वेयर डू यू फाइंड दिस लिथियम ट्रायंगल? Yes, very good. Someone has answered this question before asking. Yes, Pranjali, very good, fantastic. It's South America. देखो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे। So where is India? This is South America. This is Chile, Bolivia, Argentina. ठीक है, तो उसको ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, लिथियम ट्रायंगल, यहाँ काफी लिथियम पाया जाता है। So B is the right answer to this question. राजस्थान में मिला है यश गुप्ता, बट उसमें मैंने जब चेक किया तो कई जगह उसको कहा गया कि नहीं वो क्लियर नहीं है अभी, दैट्स नॉट वेरी मच करेक्ट, ठीक है। आई हैव चेक्ड इट अबाउट राजस्थान एंड आई गॉट टू नो सम ऑफ द न्यूज आर्टिकल व्हिच वाज सेइंग कि नो, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज सेड कि नो, दैट्स नॉट करेक्ट। सो उसको आप वेरीफाई कर लेना एक बार, और इसीलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा था बिकॉज देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग वेदर इट हैज बीन रियली फाउंड इन राजस्थान और नॉट, ठीक है। Okay, so let's move on. A VVP Vibrant Village program is related with what? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काफी न्यूज में चल रहा था तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। Vibrant Village program is related with what? Holistic developmental works to be undertaken in northern bordering villages. Yes, so B is the right answer. Good, very good, Gauri Sethi. हाँ, सौम्या प्रांजलि वाला राइट। देखो एक्चुअली क्या है, बॉर्डरिंग जो नॉर्दर्न बॉर्डरिंग एरियाज है ये सब रीजन है, हाँ, इसमें ना बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट हो, ठीक है। सो फॉर दैट एक्चुअली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड, ठीक है। सो व्हेन वाज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अनाउंस्ड? कौन से ईयर में? इन विच ईयर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड? एनीवन? कौन से बजट में एक्चुअली? सो द राइट आंसर इज बजट 2022-23। सो दिस वाज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी 2022, मतलब लास्ट ईयर, ठीक है ना। इसे मैंने बता रखा है कि अपकमिंग बजट को 1 फरवरी को प्रोड्यूस किया, मतलब पेश किया जाता है ना। इट इज प्रेजेंटेड ऑन एक्चुअली 1 फरवरी फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर, है ना, ये सब मैंने बता रखा है। अच्छा एक चीज और बताइएगा, अगर लास्ट फिस्कल ईयर का देखना हो कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस, तो उसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट रिलीज करती है? So one day before the presentation of budget, the government releases a document which tells about the last fiscal year's performance. So what is that document called? देखो बजट जो होता है वो अगले फिस्कल ईयर के लिए मैंने बताया भी है, तो जब लास्ट ईयर के लिए जो होता है उसके लिए लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, and which is actually released by written by mostly by CEA, Chief Economic Advisor. And who is the Chief Economic Advisor of India right now? Go and find out. हाँ, yes, Garima has answered it. Economic survey. So is the right answer. Yes. Economic survey उसको कहते हैं, ठीक है। Economic survey जो लास्ट में प्रोड्यूस किया था, हाँ। कुछ किसी ने लिखा एनुअल रिपोर्ट, अच्छा वो उसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो बजट को जो होता है ना, बजट वर्ड इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई वर्ड नहीं मेंशन है। Now, what is the name? What is the name of the that is mentioned in the Constitution? I think, as far as I remember, it is Article 112. उसमें जो वर्ड मेंशन है, ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में, बताओ किसमें आया था? आई थिंक टेस्टनेट में, नहीं नॉट टेस्टनेट, सॉरी, जामिया में या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये
कि व्हाट इज बजट कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आर्टिकल 112 एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। तो बजट वर्ड उन्होंने नहीं मेंशन किया, सो द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रादर आर्टिकल 112 में यू विल फाइंड द वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड, व्हिच इज एक्चुअली नथिंग बट अ बजट, ठीक है। सो ये ज्यादा पॉपुलर हो गया टर्म, बट ये पूछा था एग्जाम में कि बजट को हम लोग क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक सर्वे पता होना चाहिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज मिस्टर अनंत नागेश्वरन, यस तारोज किसी ने लिखा है अनंत नागेश्वरन, वेरी गुड, यस नंदना हैज आल्सो रिटन, हाँ सीईए का नाम, यस गौरी, वेरी गुड, हाँ अनंत नागेश्वरन, गुड। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यस दे आर आस्किंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीबीपी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आईटीबीपी इज मोस्टली यू विल फाइंड इट इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ लद्दाख and you can say Himachal Pradesh, Uttarakhand region and all. You will find ITBP officials present there for bordering the China border, ठीक है। तो ITBP का फुल फॉर्म आप तो थोड़ा सा इतना बता दिए कि आप समझ ही जाओगे। सो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ITBP जो है ना जनरली वो इस रीजन में जनरली यू विल फाइंड इट द सिक्योरिंग द बॉर्डर्स एंड ऑल, ठीक है। सो ITBP इज अ CAPF, CAPF समझते हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर अदर लाइक उसमें आते हैं एग्जांपल्स में CISF हो गया, CRPF हो गया, ITBP हो गया, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, है ना, और भी जैसे BSF हो गया। सो दीज आर CAPF, वी कॉल इट एज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है। ओके यस, हाँ ओके। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, दीज आर योर ऑप्शंस। अच्छा, म्यांमार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज so basically a military coup happened. coup आप समझते हो इसको, ऐसे COUP लिखते हैं। The democratically elected government was removed by military. Okay, this happened on 1st February 2021. Now, so please tell me before this incident, which political party was ruling the Myanmar? So this political party belongs to Aung San Suu Kyi. ठीक है। I hope you are aware of Aung San Suu Kyi. She was holding which position before the military को? कौन से position पर वो थी? हाँ, Naypyidaw, not Yangon, Naypyidaw is the capital. Yangon इसका actually नया नाम है Yangon, ठीक है। This is the old capital. Okay, I think 2015 के आसपास the capital got changed actually from Rangoon to Naypyidaw. So right now the answer should be C is the right answer. Now the political party का नाम बताइए। Yes, good, Gauri Sethi. So political party to which he was associated was National League for Democracy, NLD party के नाम है, ठीक है। And Aung San Suu Kyi actually was a state councillor. Aung San Suu Kyi was a state councillor. President कोई और था, president का नाम भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, go and find out who was the president at that time, ठीक है। Now some more questions. Aung San Suu Kyi जो है, Aung San Suu Kyi, she got Nobel Prize in the year, Nobel Peace Prize in which year? ये होमवर्क है, ठीक है। और एक और होमवर्क है, मैंने पढ़ाया भी था पेड क्लासेस में, 888 अपराइजिंग, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। What is 888 uprising? Go and read it, ठीक है। हाँ, Rangoon was the place where last Mughal emperor died. Very good, हर्षित शर्मा, गुड। हाँ ठीक है, ये सब होमवर्क है। हाँ 1990s में 91, गुड। हाँ चलो, आप लोगों को सब आता ही है, गुड। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसका अच्छा कोई करेंसी बता सकता है, म्यांमार की करेंसी क्या है? एनीवन? देखो थोड़ा बता देता हूँ। सीलोन जो है ना, ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका है। रांगून जो है फॉर्मर कैपिटल बता दिए, ये सी है। नायपिटाओ, थिम्पू इज भूटान कैपिटल। यस, कयात, वेरी गुड, गरिमा चौधरी। हाँ, सो करेंसी इज कयात, KYAT लिखते हैं, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए बिकॉज दे कैन आस्क इट, है ना। ओके, बिफोर मूविंग ऑन, दिस इज अ पेड सेशन क्लास। अगर आपके कोई फ्रेंड है, जूनियर है, वो इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, यू कैन रिकमेंड हिम हर, ठीक है। सो ही और शी कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9538895678। ओके, दिस इज 2024 टेस्ट सीरीज। जो लोगों ने ज्वाइन किया, प्लीज अटेम्प्ट ऑल दोस, ऑनलाइन में अटेम्प्ट कीजिए। That would be very, very beneficial because that would be helpful actually for you also to compare yourself with others, है ना। Okay, the next is the civil war in Sri Lanka happened between 1983 and 2009. It was which
between which two group? ये भी कई बार न्यूज में रहता है। दो सिविल वॉर हैपेंड एक्चुअली, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो गया था, तो वो कौन से ग्रुप के बीच था? 1983 से 2009 के बीच हुआ था। व्हाट इज द राइट आंसर? ये तो आसान है, होपफुली यू ऑल कैन आंसर इट, बिकॉज आई मीन दिस इज, ये काफी न्यूज में रहता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड LTTE, सो A इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली आई होप यू आर अवेयर, हियर श्रीलंका, इस रीजन में तमिल्स पॉपुलेशन रहती है ना, वी हैव डिस्कस्ड इट, 15% तमिल्स पॉपुलेशन, सिन्हालीज पॉपुलेशन इज देयर, Sinhalese population are almost around 85%. This is in fact mentioned in, I think, civics book of class 9th or class 10th, class 9th में शायद mention है ना। And LTTE, yes, so who was the leader of LTTE, Liberation of Tigers for Tamil Elam करके कुछ नाम था। So who was the leader of that? He was killed in 2009. हाँ, इससे पहले क्या ए था? काफी सारे लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड, मेनी पीपल हैव आंसर्ड इट। इसका आंसर बताइए। So it was actually he was killed, so 2009 में I think he was killed, so D is the right answer, V Prabhakaran. So yes, he was he died in 18th May 2009, so just have an idea, D is the right answer. हाँ, yes, सौम्या शर्मा, गरिमा चौधरी, you all are right। हाँ, मदर, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, तारुस, डायरी, गौरी, yes, हाँ, D is the right answer। INS विक्रांत, ये लास्ट ईयर न्यूज में था, बट कुछ चीज लास्ट ईयर की भी पूछी जा सकती है, सो दैट इज व्हाई आई एम हाइलाइटिंग इट। इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड। इंडिजिनसली मतलब होता है घर में बना हुआ, देसी, मतलब व्हाट यू कॉल इट एज मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, व्हाट एवर यू कैन से। सो डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ शिप which has the capacity to carry an aircraft. So this was manufactured, और ये फर्स्ट था, यानी अपने कंट्री में बनाया गया पहला था इंडिया में। इसका नाम है INS विक्रांत। Now there's a question, what is the meaning of विक्रांत? ये फाइंड आउट करो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। Now it has been made by कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड। हाँ, प्रांजलि, गौरी, हर्षित, तारूस, डायरी, नंदिता, यस, हाँ, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। देखो यही है, इसमें क्या होता है, देखो ये ऐसे इस तरह इसलिए बना होता है ताकि प्लेन टेक ऑफ कर सके आराम से, ठीक है। सो इसको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको कहते हैं, ठीक है। अभी न्यूज में भी था कि वार्षिक प्रोग्राम दैट मस्ट गो फुल स्टीम अहेड एंड ऑल्सो देयर वाज अ प्लान एक्चुअली टू मेक अनदर वन। कुछ इस तरह बात आ रही थी कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 यानी दूसरा वर्जन भी बनाया जाए INS विक्रांत का, ठीक है। तो वो कहा जा रहा है कि शायद वो मतलब पहले वाले से और शायद बड़ा हो, ठीक है। सो दिस थिंग्स वेर कमिंग इन द न्यूज एंड ऑल, ठीक है। हाँ, विक्रांत करेजियस एंड ऑल, गुड। हाँ, so of course they can ask it again. Now the next is, what is the motto of CBI? इस चारों में मोटो CBI का क्या, बताइए, बताइए तो। विक्रांत मतलब करेजियस लाइक अस, गुड। व्हाट इज द मोटो ऑफ CBI? कुछ और बताइएगा। इसी चार ऑप्शंस में से कोई एक जो है, बस सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो है, ठीक है। एंड दिस वाज आस्क्ड इन ALET एग्जाम। Yes, here the right answer is D. अच्छा, बाकी तीन में से कोई एक बताइए जो सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, ठीक है। ये तो मोटो हो गया CBI का, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। 2 is for सुप्रीम कोर्ट, यस, प्रांजलि, गुड। यथो धर्मस्ततो जया, वेयर देयर इज राइटियसनेस देयर इज विक्ट्री, या राइटियसनेस कह लो या धर्म कह लो, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। ये कहां से लिया गया? ये ना आप कहीं कोट यूज भी कर सकते हो, मतलब जैसे कहीं ऐसे में स्पीच देना हो, कहीं ऐसे में लिखना हो, तो यू कैन यूज दिस कोट्स। हाँ, दिस एक्चुअली हैज बीन टेकन फ्रॉम भगवत गीता, ठीक है, सो याद रखना। एक और ये है, इसका भी फाइंड आउट करना, ये और ये भी किसी एजेंसी का मोटो है, ये होमवर्क है, फाइंड आउट करना, ठीक है। सो हियर डी इज द राइट आंसर, ओके। CBI है ना, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, एंड रिसेंटली a new CBI director was appointed in the month of May. His name is Mr. Praveen Sood, so that is why it was in the news. Okay. The next is CBI comes under which department? कौन से डिपार्टमेंट में आती है इन चारों में से? मिनिस्ट्री वगैरह उन्होंने पूछा है, ठीक है, तो हो सकता है डिपार्टमेंट नहीं पूछा। डिपार्टमेंट इज एक्चुअली अंडर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के अंडर में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, 4, 5, 6 एंड ऑल, इस तरह। सो हाँ,
बी इज द राइट आंसर। हाँ देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ना, यही दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बजट, जिसको आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हो, या इकोनॉमिक सर्वे ये बनाती है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बहुत फेमस डिपार्टमेंट है एक्चुअली, DOPT हम लोग इसको कहते हैं ऐसे, ठीक है। एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, ये एक सेपरेट मिनिस्ट्री है एंड दिस इज अंडर प्राइम मिनिस्टर। इसी के अंडर में DOPT आता है, ठीक है। जितना भी ऑफिसर्स होते हैं ना, IAS IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, दे आर एक्चुअली बीइंग कंट्रोल्ड बाय DOPT, मतलब उसी के अंडर में आते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, आप देख सकते हो मिस्टर PM मोदी इज एक्चुअली हैविंग दिस मिनिस्ट्री, है ना। ओके, चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन विच डेट? तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। आपने चंद्रयान 3 के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, लेकिन मैं सोच रहा था, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था 2021 में, वेरी वेरी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज साइंड ऑन विच डेट, और वो एग्जैक्ट डेट पूछा था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा। तो मैं सोच रहा था कि शायद इसका भी ने एग्जैक्ट डेट दे दी, काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। कुछ लोग 14 जुलाई बोल रहे हैं, कुछ लोग 23 अगस्त भी बता रहे हैं। चलो अच्छा, इसका आंसर बताइए। तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज साइंड ऑन विच डेट? दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन 2021, और इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन A-LET ने पूछा था 2023 में। हाँ यस, गरिमा चौधरी हैज आंसर्ड इट परफेक्टली। तो एक्चुअली लॉन्च अगर पूछा जा रहा है तो A आंसर होगा, अगर लैंडिंग पूछा जा रहा है तब B आंसर होगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए, बी केयरफुल। हाँ तो इसीलिए मैंने पूछा था कि सो इट वाज लॉन्च ऑन 14 जुलाई, बट कुछ वक्त लगेगा वहां पूछने में। सो 23 अगस्त को एक्चुअली इट गॉट सक्सेसफुली लैंडेड, ठीक है। और बाकी चीज पता होगा आप लोग, लैंडर और रोवर का नाम बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ लैंडर एंड रोवर, ठीक है। हाँ एक्चुअली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, इट वाज साइंड ऑन 10 दिसंबर 1948, ठीक है, ठीक है, यस। So here the right answer is A is the right answer. The provision for disqualification is given in which article of the Constitution? For MPs I am asking. अच्छा, अगर आप MPs का बता दोगे तो आप MLA का भी बता दोगे, इसलिए कि मैंने पेड क्लासेस में बताया है कुछ ट्रिक्स, है ना, इससे रिलेटेड। हाँ, लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान, वेरी गुड। हाँ ये सब तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इज गिवन इन आर्टिकल X। MPs का तो ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई एक है इसमें से, और MLAs का भी अगर आप बता दोगे सो आई विल बी मोर हैप्पी। यस, द राइट आंसर इज 102। मैंने आपको कुछ ट्रिक बताया था कि 89 ऐड करके, है ना। सो 191 इज फॉर MLA। मैंने पेड क्लासेस में आई हैव टॉट यू सम ट्रिक्स आल्सो, है ना। सो B इज द राइट आंसर। यस, जतिन प्रंजलि, यस, गौरी सेठी। सो B इज द राइट आंसर। डिस्क्वालिफिकेशन ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज यस, मिस्टर राहुल गांधी's disqualification was in the news, then later Supreme Court stayed it and all। तो ये सब काफी न्यूज में चला था। इससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस थे, मैंने बताया था, कुछ जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के। द फर्स्ट इज, एक केस है, इसको कहते हैं लीली थॉमस केस, यस, जो कैचे से रिलेटेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक्शन? सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से रिलेटेड है ना, 1951 आई थिंक, है ना। यस, तो लिली थॉमस केस है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। नाउ देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विद दैट। सो राहुल गांधी वाज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ RPA, है ना। तो है ना, सो सेक्शन 8 जो है ना RPA का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना उसको, एक बार झलक देख लेना, और लिली थॉमस केस देख लेना, ठीक है। Okay, now the next one is the last caste-based census happened in India in the year. कब हुआ था बताइए? जिसका रिजल्ट है ना, whose data is with us. Basically, recently, the state of Bihar has decided to conduct caste-based census. अभी उसका रिजल्ट भी आ गया था, है ना। तो ऑल इंडिया लेवल पर कब हुआ था लास्ट caste-based census? उसका ईयर बताइए। गुड, वेरी गुड। यस, तारूज डायरी, गौरी, नंदिता, हाँ 1931 में हुआ था। एक और एक्चुअली 2011 में होता, बट द डेटा इज नॉट विद अस, सो इट्स मोर एक्यूरेट टू से ऑप्शन सी, है ना। अब हुआ क्या था कि द पीपल वेंट टू द पटना हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल। सो सुप्रीम कोर्ट सेड विल नॉट स्टे बिहार कास्ट सर्वे अनलेस प्राइम फैसी का केस मेड आउट ऑफ दोज अपोजिंग इट। इन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दीजिए,
कांट स्टॉप बिहार फ्रॉम रिलीजिंग मोर कास्ट डेटा सेंसस एंड ऑल, ठीक है। तो मतलब कोई रीजन दीजिए जिसकी वजह से हम स्टॉप ऑर्डर पास करें, स्टॉप करने का। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं कर पाए लोगों ने, जो लोग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं कर पाए। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, तो अभी डेटा निकला है ना। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट INS विक्रमादित्य। INS वगैरह जहां देखो ना, ये शिप होती है, एक तरह की नेवी की शिप होती है, ठीक है। बताइए तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट INS विक्रांत। देखो इट इज इंडिजिनसली डेवलप। देखो अभी तक तो एक ही बनाया है INS विक्रांत, मतलब इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर एक्चुअली विक्रमादित्य है ना, तो ये वाला तो होगा नहीं। इट वाज बॉट फ्रॉम रशिया एक्चुअली। बी इज द राइट आंसर। यस, गौरी सेट्टी, हर्षित, तारुस डैरी। इंडिजिनसली डेवलप्ड INS विक्रांत है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, बाकी के शिप्स बनाए हैं इंडिया ने, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही बनाया। और ये INS विक्रमादित्य भी जो है ना एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर ही है ना। तो कहीं लिखा हुआ होगा, है ना, कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर एंड ऑल, ठीक है। सो वी हैव बॉट इट फ्रॉम रशिया एंड ऑल। जो बिडेन इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ USA, सॉरी, इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ USA। ये क्वेश्चन क्यों मैं पूछ रहा हूं? Joe Biden is the president of USA. Which one? Because recently there were reports that government of India has invited Joe Biden for Republic Day guest, for being a Republic Day guest next year. Yes, the right answer is option C, 46th. ठीक है. Yes, Gauri Sethi, very good. हाँ. ठीक है, he is the 46th president of USA. Modi has invited, PM Modi has invited Biden as Republic Day guest, says US envoy. मतलब US ambassador to India has said this. देखो ये 21 सितंबर की आर्टिकल है ना। So इनवाइट किया गया, अब देखो क्या होता है, लेट्स सी। सो ये न्यूज में था तो जस्ट पता होना चाहिए। ही बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी, चलो ये बताओ, रिपब्लिकन, लेबर, कंजर्वेटिव, डेमोक्रेट, बताओ। हाँ, 2023 के गेस्ट थे मिस्टर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, इजिप्शियन प्रेसिडेंट। गुड। हाँ देखो ये इस केस में 46 होगा, यहाँ साफ लिखा हुआ 46 प्रेसिडेंट, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं करना, 46 प्रेसिडेंट इज जो बिडेन। हाँ हाँ, मोदी जी वॉज इन्वाइटेड इन बैस्टाइल डे। यस संजय, गुड। इसका आंसर बताइए तो। रिपब्लिकन कुछ लोग लिख रहे नहीं, ही इज एक्चुअली फ्रॉम डेमोक्रेट। देखो पहले एक समझना, ये और ये जो है ना, ये यूएस की पार्टी है। दीज टू आर यूएस की पॉलिटिकल पार्टी, एंड दीज टू, लेबर एंड कंजर्वेटिव, इज एक्चुअली यूके की बहुत फेमस पार्टी है ये दोनों, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट ऋषि सुनक? सो ही बिलोंग्स टू दिस पार्टी, ऋषि सुनक फ्रॉम यूके, ठीक है, इज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम यूके। और जो यूएस में ये दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक को कहते हैं डेमोक्रेट, सो डेमोक्रेट पार्टी इज देयर, ओके, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेट पार्टी, पार्टी सिंबल, इसको कहते हैं मतलब जो भी गधा है, डोंकी। एंड दिस वन इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, ओके। रिपब्लिकन पार्टी जैसे फेमस है डोनाल्ड ट्रम्प, जॉर्ज बुश, ही वाज फ्रॉम देयर। डेमोक्रेट से बैरक ओबामा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम, देन जो बाइडेन, यू विल फाइंड इट हियर, ठीक है। रिसेंटली एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर, उनको रिमूव कर दिया गया, एंड इट वाज डन बिकॉज रिपब्लिकन पार्टी वाज डन बाय इट, है ना, मैंने रिपब्लिकन की मेजॉरिटी थी वहां। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? कोई बता सकता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को हैज बीन रिमूव्ड रिसेंटली, सो हु इज दैट पर्सन? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, बताइए तो। विवेक रामास्वामी आल्सो इन रिपब्लिकन, यस यस, हाँ। Yes, McCarthy, Mr. McCarthy was removed as he was actually House of Representative Speaker. He was removed. Yes, Garima Chaudhary. हाँ. Good, good. Enforcement Directorate comes in the news, so it's actually in Ministry of Finance. देखो ये of course ये क्या चीज के related है, मतलब मनी से related है ना, तो आप खुद ही आंसर कर सकते थे। So अभी ये सब न्यूज में था, ये सब चीज Enforcement Directorate was in the news recently, है ना, so that is why I've discussed it. Enforcement Directorate enforces which of the laws? ये कौन से लॉ इंप्लीमेंट करते हैं आप बताइए तो। एनीवन? सो बेसिकली इट इज रिलेटेड विथ मनी रिलेटेड मैटर, है ना। सो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और अब रिसेंटली पास हुआ था
Fugitive Economic Offenders Act, है ना. So these are the laws implemented. So A is the right answer. Yes, Gauri Sethi, Nandita, you are the right. Huh? Okay. Who is the current Agency Executive of Enforcement Directorate? Agency Executive मतलब वही DG, Director General, Head कह लो एक तरह से. What is the right answer? हाँ, इससे पहले वाला A था, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. गुड, जिन्होंने भी आंसर किया. यस, एजेंसी एग्जीक्यूटिव ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज, मतलब हेड आप बता दो. सो द राइट आंसर इज मिस्टर राहुल नवीन. बी इज द राइट आंसर. तो ये काफी न्यूज में थे बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड हिज टेन्योर टिल 15 सितंबर, बट आफ्टर दैट मिस्टर राहुल नवीन, ही इज एन IRS ऑफिसर. तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज ED डायरेक्टर, है ना, टिल 15 सितंबर एंड ऑल, है ना. After that, Mr. Rahul Naveen, he is also an IRS, Indian Revenue Service Officer. He has been appointed as the in charge of Director of Enforcement Directorate. Okay. The next is GST Council is mentioned under which article of the Indian Constitution? 279, 278, 319, 246. अभी आज मैं देख रहा था एक डिसीजन लिया गया है GST Council के द्वारा to impose I think 28% GST on I think online gaming, है ना. इस तरह कुछ न्यूज था ना कि ऑनलाइन गेमिंग पे कुछ टैक्स वगैरह लगाएंगे. सो आई सॉ दिस टुडे आल्सो. हाँ, 279 कैपिटल A. B इज द राइट आंसर. वेरी गुड, है ना. यस, गौरी सेठी, गरिमा चौधरी, जातिन, यू आर राइट. ये सब आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे. राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. कौन से जजमेंट में कहा गया? यस, बी इज द राइट आंसर. ये तो आसान है. केस पुट्टास्वामी केस. राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के अंडर है? ये भी बताया हुआ है. हाँ, इससे पहले कभी आंसर था. गुड, ये वाला आंसर बताइए. विच आर्टिकल के अंदर राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी, है ना. सो सी इज द राइट आंसर, है ना. राइट टू लाइफ, इसको बहुत एक्सपैंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने. मैंने आपको पेड क्लासेस में पढ़ाया है ना. तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 हैज बीन एक्सपैंडेड अलॉट बाय सुप्रीम कोर्ट, एक्सपैंडेड इट्स मीनिंग अलॉट, है ना. सो सी इज द राइट आंसर. The next is which committee was set up by government for drafting data protection bill? एक बिल बनाए जैसे जब केस पुट्टास्वामी जजमेंट आया था 2017, उसके जस्ट बाद ही कमेटी बनाई गई थी. आई थिंक 2018 वगैरह बनाई गई थी. What's the name of that committee? The right answer is Justice B.N. Sri Krishna Committee. So he's a retired judge of Supreme Court, है ना. So B is the right answer, है ना. Yes, Garima, Gauri Sethi, Pranjali, you all are right. So this is all about today's class. This is CLAT 2024 UG course. If anyone is interested, he or she can go for it. अच्छा, एक चीज और ये है कि संडे वाली जो रिवीजन सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं और भी इसका टाइम फिक्स कर दूंगा अभी, क्योंकि आज मॉर्निंग में 11 AM में टॉपर्स बैच था, इसीलिए वी हैव चेंज्ड इट. सो आई एम प्लानिंग दैट दिस शुड बी मेड अ फिक्स टाइम. देयर शुड बी अ फिक्स टाइम. आई विल अनाउंस इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, जो द हिंदू एनालिसिस होता है उसमें मैं बता दूंगा. एंड आप इसको ज्वाइन करें. मैं और कोशिश करूंगा कि और कंप्रिहेंसिव बने ये. मतलब इसमें होपफुली आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऐड मोर एंड मोर एस्पेक्ट्स. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन. सबको लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना. प्लीज शेयर इट, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.